हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में? लास्ट लेक्चर का वीडियो प्रॉपर अगर देखा हो तो हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स किए थे। रिमाइंड करवा दो बच्चों। इन ट्रायंगल एबीसी, here D, angle ACD is called exterior angle of two interior opposite angles like A and B. So, what is the property of exterior angle property? Measure of exterior angle is equals to sum of its इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। वो प्रॉपर्टी थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे। और यही वीडियो में बहुत बढ़िया प्रूफ देके लास्ट में हमने वीडियो का एंड किया था कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, किसी भी ट्रायंगल, acute triangle, obtuse triangle, right angle triangle, in any triangle, sum of the measure of all three angles is always 180. So आज के लेक्चर में हम ये दो रूल के परफेक्टली यूज करेंगे और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो बच्चों? तो लेट्स स्टार्ट। myself तेजल शाह, 7th का ये थर्ड वीडियो चैप्टर 6 का, और वहां है एक्सरसाइज 6.3 योर एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दो फिगर ड्रॉ करके मैंने रखी है, हम फर्स्ट के लिए जा रहे हैं। Here in triangle ABC, we have all three angles. Angle A measuring x, angle B measuring 50, and angle C measuring 60. We have one equation for angle sum property of triangle using angle sum property of triangle. Using angle sum property of triangle, we got angle A plus angle B plus angle C is equals to 180. Put the value of all angles. We obtain angle A measuring x, angle B measuring 50, angle C measuring 60 equals to 180. Now we have an equation with variable x. So x का मिलना पक्का है बच्चों। x plus 50 और 60 sum 110 equals to 180. X is equals to 180 minus 110 got 70. So unknown x को हमने फाइंड कर लिया for example 1 using angle sum property of triangle. Now we go for example 2. Same. In triangle PQR, angle P plus angle Q plus angle R, we got 180 using angle sum property of triangle.
Using angle sum property of triangle, sum of the measure of all three angles of triangle gives 180, like angle P plus angle Q plus angle R. We got 180. This is called angle sum property of triangle. Angle P measuring, this symbol is for right angle, measuring 90. Angle Q measuring 30. Angle R measuring unknown x is equals to 180. Again we obtain equation for variable x. Therefore, sum of these two got 120 plus x is equals to 180. Therefore, x is equals to 180 minus 120. Therefore, x is equals to 60. अभी थोड़े एंगल सम प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल करते हैं बाद में एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन आएगा बच्चों, तब और मजा आएगी. Let's go for number 3, number 4 and number 5. Simple, same work बच्चों. In triangle XYZ, two angle measurement present and third one is unknown. So using angle sum property, of triangle. Using angle sum property of triangle, sum of the measure of all three angles like angle X plus angle Y plus angle Z is equals to 180. Angle X measuring 30. Angle Y measuring 110, angle Z measuring unknown x is equals to 180. Sum of these two 140 plus x is equals to 180. Therefore x is equals to 180 minus 140. We got 40 for x. X is equals to 40. Let's go for here. Here no name of vertex, doesn't matter. But है तो angle sum property बच्चों. Let's go for using angle sum property for triangle. Using angle sum property for triangle. Sum of the measure of all three angles is equals to 180. Here x, another x and 50 means x plus 50 equals to 180. X plus x got 2x. X plus x got 2x plus 50 equals to 180. 2x is equals to 180. 50 positive, side change negative. 2x is equals to 180 minus 50 got 130. x is equals to 130. ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन में जाएंगे. Got 65. अंडरस्टूड किया होगा बच्चों, इजी है, टफ नहीं है यहां. नंबर 3 बच्चों, पता भी चल गया होगा कि कैसा करना है. सेम बट ऑल थ्री एंगल इक्वल, कॉल्ड इक्वी एंगल ट्रायंगल. और हमने रिवीजन में भी देखा था जब रूल्स पढ़ रहे थे. इक्वी एंगल ट्रायंगल होता है तीनों एंगल 180 को इक्वली डिवाइड कर लेंगे, मीन्स हर एक का मेजरमेंट
60 60 60 आना है, मीन्स x इज इक्वल्स टू 60 मिलना है। और दूसरा भी रूल देखा था, इक्वी एंगल जो होता है ना वो इक्विलेटरल भी होता है। बट ठीक है, हम यहाँ तो जस्ट x फाइंड कर रहे हैं। लेट यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, using angle sum property for triangles, sum of the measure of all three angles, x plus x plus x got 180. 1x, 2x, 3x means 3x is equals to 180. Therefore x is equals to 180 divided by 3. X is equals to 3 6 are 18, 3 zeros are 0. We got x is equals to 60 और टाइटल भी वही है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x। क्लियर होगा बच्चों? लास्ट एग्जाम फॉर क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी टू फाइंड x। Using angle sum property for triangle, sum of the measure of all three angles like 2x plus x plus 90 got 180. 2x में just 1x ऐड करेंगे, got 3x plus 90 equals to 180. 3x is equals to 90 साइड चेंज करके सब्ट्रैक्ट करेगा, 3x is equals to 180 minus 90 got 90. 3 मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में जाएगा, x is equals to 90 divided by 3 got 30. x 30 हुआ तो ये एंगल का मेजरमेंट होगा 230 60, 60 30 90 और 90 180। प्रॉपर्टी भी मैच कर रही है बच्चों। और दो एंगल जो गिवन थे x और 2x वो भी मैच कर रहे हैं, एक 30 है, दूसरा उसका ट्वाइस मीन 60 और सम भी 180 मैच कर रहा है। क्लियर होगा बच्चों? यहाँ हमारा क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 6.3 का कंप्लीट हुआ। लेट गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। हियर 2 अननोन x and y. Find the unknown x and y. बच्चों डिफरेंट मेथड हो सकती है यहाँ x and y फाइंड करने की। किसी को y फाइंड करना है इसके रिलेटेड तो लीनियर पैर से कर सकता है, 60 मिल जाएगा। फिर अभी किया वो एंगल सम प्रॉपर्टी, y प्रेजेंट है 60, ये 50 तो अननोन x भी मिल जाएगा। कोई दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करके x फाइंड करेगा, ये दोनों का सम एक्सटीरियर जितना होगा तो x मिल जाएगा। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से y, आप प्रॉपर्टी मेंशन करते जाओ, मेथड आपकी सारी सही होगी। तो हम पहले ये लिखे, अगर x plus 50 गॉट ये दोनों का सम इसके जितना 120। तो हमने यहां यूज की कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहां वो मेंशन करना पड़ेगा आपको। exterior angle property. Therefore x is equals to 120 minus 50. x is equals to 70. अब x मिल गया,
अब x अवेलेबल है, अब y फाइंड करना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी जा सकते हो, या फिर y प्लस 120 इक्वल्स टू 180 यूजिंग लीनियर पेयर, मीन्स आप कहीं से भी जा सकते हो। आप प्रॉपर्टी जो यूज कर रहे हो वो लिखना, मैं वही जा रहा हूं, y प्लस 120 इक्वल्स टू 180। ये y और 120 का सम 180 बताया, मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी यूज की यहां, लीनियर पेयर एंगल, तो यहां लिखेंगे लीनियर पेयर। So y is equals to 180 minus 120. Y is equals to 60. After finding x is equals to 70, you also apply angle sum property here. but ठीक है, आप जहां से जा रहे हो वो प्रॉपर्टी मेंशन करते जाओ। दिस इज योर प्रॉपर मेथड। लेट्स गो हियर। इंटरेस्टिंग, अगर भूल नहीं गए हो तो ये कोई एक्सटीरियर एंगल नहीं है। एक्सटीरियर एंगल तो ट्राइंगल के एंगल के साथ लीनियर पेयर बनाता है, ये एक्सटीरियर है जहां कुछ भी मेंशन नहीं है। तो एक क्लियर कट ये दोनों याद आने चाहिए, ऐसे पढ़ाए थे मैंने फर्स्ट लेक्चर में। दिस इज कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Vertically opposite always equal, so y is equals to 80, but mention करना पड़ेगा vertically opposite angles, y is equals to 80, vertically opposite angles। ये y मिल गया डायरेक्ट एक ही स्टेप में। अब y अवेलेबल है तो आप जा सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो दूसरा अननोन x मिल जाएगा। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल, वी गॉट x plus y plus 50, x plus y plus 50 is equals to 180। x अभी फाइंड करना बाकी है, y फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू है 80 प्लस 50 इक्वल्स टू 180। x प्लस ये 130 होगा इक्वल्स टू 180। therefore x is equals to 180 minus 130, we got 50 as a x। now clear होगा बच्चों, y और x दोनों मिल गए। मीन्स वर्टिकली लीनियर पेयर आते तो रहेंगे ही, ज्योमेट्री में यही मेन है बच्चों, कभी कोई रूल भूलना नहीं चाहिए। क्लियर होगा? यस बच्चों। चलो अब ये एग्जाम्पल, यहां y आपको फाइंड करना हो तो ये तीनों का सम 180 बना के भी कर सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी। y से लीनियर पेयर से भी x पे पहुंच सकते हो। मैं बोलूं हमको डायरेक्ट x फाइंड करना है तो x इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू दिस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मीन्स कहीं से भी जाओ, डजंट मैटर। x is equals to 50 plus 60. Measure of an exterior angle is equals to sum of its interior opposite angle. This property is known as exterior angle property. Therefore x is equals to 110। x मिल गया, x मिल गया। x की लीनियर पेयर से भी y मिल सकता है, अदरवाइज एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो यहां एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं।
using angle sum property of triangle, 50 plus 60 plus y, 50 plus 60 plus y is equals to 180. ये 110 प्लस y इक्वल्स टू 180. देखो यही रिलेशन आया, लीनियर पेयर में होगा तो ये 110 प्लस y इक्वल्स टू 180 मिलने वाला था. फाइनली एंगल सम प्रॉपर्टी में भी वही मैच किया. Therefore y is equals to 110 कट हो गए. Therefore y is equals to 70. y भी मिल गया बच्चों. कोई भी वे यूज करो, प्रॉपर प्रॉपर्टीज को मेंशन करना. अभी ऊपर किया था वैसा ही है. ये x मिलेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से y मिल जाएगा. x is equals to 60. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, x मिल गया. अब x अवेलेबल है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. x plus y plus 30. x plus y plus 30 got 180. Taking x is equals to 60 plus y plus 30 equals to 180. y plus ये दोनों का सम 90 is equals to 180. y is equals to 180 minus 90. Finally y is equals to 90. y मिला 90. क्लियर होगा बच्चों. 90 60 30 got 180. बहुत इजी है ये पूरी एक्सरसाइज. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल, लीनियर पेयर एंगल सप्लीमेंट्री, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल, sum of the measure of all angle of triangle is 180, and fourth one exterior angle property. यही यूज कर रहे हैं बच्चों हम कब के. Last two examples of question number 2 as well as exercise 6.3. बच्चों y को मिलना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से. सो स्टार्ट. y is equals to 90. Vertically opposite angles. y मिल गया. अब y मिल गया. अब एंगल सम प्रॉपर्टी पे चलते हैं. यूजिंग using angle sum property of triangle, we got x plus x plus y, x plus x plus y is equals to 180. x और x मिलके बनेंगे 2x. Taking y is equals to 90, 180. 2x is equals to 180 minus 90. 2x is equals to 90. अब 2 मल्टीप्लिकेशन में है जाएगा डिवीजन में. x is equals to 90 divided by 2 got 45. We obtain y and x very easily. Here interesting one. यहां कोई वैल्यू ही नहीं है बट एक रिलेशन है. x is equals to y.
vertically opposite angle. X is equals to Y. Vertically opposite angles. So here X, we take here Y also. Here X, we take Y here also. Now using angle sum property, we got the value of Y. Using angle sum property of triangle, measure of all three angles, y plus y plus y is equals to 180. 3y is equals to 180. Y is equals to 180 divided by 3 got 60. और y 60 है तो x भी 60 because x is equals to 1. Therefore, x also 60 because x is equals to y. Understood किया होगा बच्चों? मजा भी आ रहा है बट एक्सरसाइज इजी है. सो बच्चों यहां हमने एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट किया. छोटा वीडियो है बट एक एक्सरसाइज कंप्लीट है. वॉच करना प्रॉपरली, नोट्स बना लेना, लाइक कमेंट जरूर करना और ये चैप्टर को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर करना. बाय एंड टेक केयर बच्चों. थैंक यू वेरी मच.